Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the most important topic of this chapter, that is respiration in humans. So let's move to the classboard. So dear students, chapter number 13, gaseous exchange, and the most important and very interesting topic which we are going to discuss, that is respiration in humans. So dear students, Allah has made us the best of His creations. So हम अगर best of His creations हैं तो definitely हमारे अंदर जो अल्लाह ताला ने system रखे हैं वो the best हैं, the best, clear? So इसी तरह से हम simple से शुरू हुए थे respiration को discuss करना, hydra, earthworm, then we moved on to cockroach, then the fishes, then frog, and now into the birds, then finally the humans. So it means according to the levels of complexity and according to the levels of efficacy, the respiration in humans is the best. Clear? So dear students, respiratory system in humans consists of air passageways, यानी वो रास्ते जहाँ से एयर गुजरेगी, उसका गुजर होगा, and the lungs and the lungs. तो ये दो major structures हैं in the respiratory system of humans. So first of all, we will discuss the air passageways. Clear? So air passageways. तो dear students, air passageway हमारा start होता है यहाँ से, this organ, the nose. Clear? और nose में कहाँ से start होगा? From the external nostrils. So it starts from the external nostrils, then is, इसको हम पहले सीक्वेंस के साथ इन पैसेजवेज को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद one by one इसको डिस्कस करेंगे. क्लियर? सो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, then is the nasal cavity, and then there is the internal nostrils, the internal nostrils, they lead to the throat or pharynx, and from pharynx it leads to
the glottis, then there is larynx, then there is trachea, then there is bronchi, there are bronchi, and then there are bronchioles, the smaller division of bronchi, then there are the alveolar ducts, and at the end of the alveolar ducts there are air sacs which contain the alveoli. Clear? So this is the sequence of the human passageway, air passageway. तो डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं, देन टर्न बाय टर्न इसको डिटेल से डिस्कस भी करेंगे इसको. So this is palate. Clear? This is the palate. और उसके ऊपर ये मौजूद है सारी. This is the nasal cavity. और यहाँ पर मौजूद है tongue. Clear? Then the pharynx. Epiglottis. This is esophagus. Then there is a cartilaginous box, which is larynx. Then starts the trachea, the windpipe, so it enters the chest cavity, and before entering into the lungs, it is divided into two parts, two main divisions. The bronchi, the left bronchus and the right bronchus. Then this bronchus divides further, divides and subdivides. So only I am drawing the one part of the one side. Clear?
So these are our lungs. This is the right lung and this is the left lung. And the lobes, the lungs. So this is the pleura of the lungs. And now I'm going to label it completely. So dear students, this is the nasal cavity. Clear? And this is the palate, जिसको उर्दू में हम तालु कहते हैं. ठीक है, ये इंटीरियर साइड से हार्ड होता है, पीछे वाली साइड से सॉफ्ट होता है. चैप्टर नंबर 12 में डिटेल से डिस्कस किया था इसको अभी. एंड दिस वन इज द oral cavity, and this is our throat, which is called as pharynx, a muscular tube. Here, and this is the flap of cartilage, elastic cartilage, which is called the epiglottis. And here is the esophagus, which is called the food pipe. Clear? So this is the food pipe. And this opening, ये तो ये pharynx और इसका फ्लोर, फ्लोर मतलब नीचे वाली जगह, फर्श, यहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग. This opening is called the glottis. Clear? And then there is a cartilaginous box over here. This box is called the larynx, or in general, it is also called as a voice box. So I'm speaking on the behalf of this box. Clear? And here is a tubular structure. This whole tube, this is called trachea. Trachea, and in general it is called as the windpipe. It is the windpipe. Clear?
And then this windpipe means the trachea. It divides into two smaller branches. These are called as the bronchi. So this one is the left bronchus. Bronchus is the singular and bronchi is the plural. So let me show the rings. So left bronchus, after left bronchus. So, and this one is the right bronchus. And it divides and further subdivides. Finally, when there is no cartilage remaining and the diameter is less than 1 millimeter, this is the bronchiole. Bronchiole. And at the end of the bronchiole, this is the alveolar duct. Clear? So this one is the alveolar duct, and this is the air sac, and it is having the microscopic structures. So these are the alveoli. Here, the structural and functional unit of the respiratory system. And this is the left lung, and it is covered by the pleura. So this is outer pleural membrane, and this one is the inner pleural membrane, and these two are collectively called the pleura, means the covering of the lungs. Clear? और इनके दरमियान में यहाँ पर मौजूद है space. This space is called the pleural space, और इस space के अंदर मौजूद है fluid. It consists of the fluid. This fluid is called the pleural fluid. Clear? And beneath the lungs, there is a thick muscular sheet, a dome-shaped structure. So this is actually the diaphragm. Okay. So this is a basic concept, a basic diagram which introduces the human respiratory system. अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स इनकी एक्सप्लेनेशंस की तरफ. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले नोज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोज. तो यहाँ तक ये तीनों स्ट्रक्चर्स जो हैं, all these three structures, they are present within the nose.
So nose basically it is a sensory organ. It is involved with the sense of olfaction, smell. ठीक है, स्मेल के साथ इसका ताल्लुक है, हम पढ़ चुके हैं पहले भी. लेकिन इसके अलावा ये सबसे द इनिशिएटिव पॉइंट है, द फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम वेयर द एयर विल एंटर. क्लियर. सो यहाँ पर बाहर वाले साइड पे ओपनिंग्स हैं ये. सो ओपनिंग्स को कहा जाता है नॉस्ट्रल्स. जो नेजल ओपनिंग्स हैं यहाँ पर, सो इन ओपनिंग्स को कहा जाता है नॉस्ट्रल्स. तो ये बाहर की तरफ भी मौजूद हैं और इसी तरह पीछे अंदर की तरफ भी मौजूद हैं, अंदर वाले साइड पे इंटरनली. सो जो बाहर की तरफ ये दो ओपनिंग्स हैं इन्हें कहा जाता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स या एक्सटर्नल नेजल ओपनिंग, और जो अंदर की तरफ मौजूद हैं इन्हें कहा जाता है इंटरनल नेजल ओपनिंग्स या फिर इंटरनल नॉस्ट्रल्स कहा जाता है. और दरमियान में मौजूद है नेजल कैविटी. सो दिस इज द नेजल कैविटी. क्लियर. अब डियर स्टूडेंट्स, नेजल कैविटी जो है, सो द नेजल कैविटी So if you talk about the nasal cavity, it is lined by mucous membrane and the fine hairs as well. It has got fine hairs and the mucous membrane और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जो मेम्ब्रेन मौजूद है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, बेसिकली इट इज़, इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है डियर स्टूडेंट्स. इट इज़ ciliated columnar epithelium. Ciliated columnar epithelium. आपने ग्रेड 9 के अंदर एनिमल टिश्यूज़ पढ़े. एनिमल टिश्यूज़ में पढ़ा था आपने कि 4 बेसिक टिश्यूज़ हैं. नंबर 1 इज़ द लाइक the epithelial tissue, then muscular tissue, then nervous tissue, and number 4 the connective tissue. जो epithelial tissue था वो आगे 5 तरह का था, 5 different categories. So epithelial, the squamous epithelium, the cuboidal epithelium, the columnar epithelium, the ciliated columnar epithelium, and the stratified squamous epithelium. So इन्हीं से मिलकर हमारी बॉडी की जो internal linings हैं और different structures, heart, blood vessels, kidneys, ureters, tubes, etc. etc. they are formed. तो उनमें से एक था ciliated columnar epithelium. Ciliated columnar epithelium बेसिकली ये इस तरह से लंबे लंबे elongated cells होते हैं, column shaped cells. Clear? This is the basement membrane. और इनके अंदर यहाँ पर मौजूद हैं इनके न्यूक्लियाई और इनके ऊपर there are more present cilia. Clear? So this is actually the ciliated columnar epithelium. These are cilia and these are the columnar cells, columnar epithelium. Together it forms the ciliated columnar epithelium, यानी कि ऐसी columnar epithelium जिसके ऊपर cilia मौजूद है. और इनका फंक्शन क्या? cilia they move to and fro. तो ये म्यूकस को, हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम से म्यूकस को जो है वो प्रोपेल, एक्सपेल करने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं. तो फाइन हेयर्स और म्यूकस मेम्ब्रेन, इन दोनों का फंक्शन पहले डिस्कस कर लेते हैं. सो बोथ ऑफ दीज दे आर इन्वॉल्व्ड. एक तो ये ट्रैप करेंगे, दे ट्रैप large dust particles, गर्द गुबार और मट्टी और इस तरह के बड़े बड़े पार्टिकल्स को, पेपर हो सकता है, पेपर के पीस हो सकते हैं, एनीथिंग. सो लार्ज डस्ट पार्टिकल्स उसको ट्रैप करेंगे. एंड ऑल्सो स्मॉल इंसेक्ट्स,
लाइक द फ्लाइज, मक्खी नाक में घुसने को उससे प्रिवेंट करेंगे। इस तरह से मॉस्किटोज़ उनको घुसने से प्रिवेंट करेंगे। तो जो छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं इनको ये ट्रैप कर लेते हैं और ये यहीं से बाहर रिमूव करते हैं। सो दीज आर ड्यू टू द नेजल हेयर्स, ये फिल्टर का काम कर रहे होते हैं, फाइन हेयर्स हैं और साथ में म्यूकस मेम्ब्रेन है। एक तो फंक्शन ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, दे मॉइस्टन द इनकमिंग एयर। जो हवा हमने इनहेल किया ये उसको मॉइस्ट करेंगे, उसको नम करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मॉइस्टनेस और मॉइस्चर इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रेस्पिरेटरी सर्विस। जो जितनी ज़्यादा मॉइस्टनेस होगी उतनी ही आसानी से एयर जो है वो डिफ्यूज़ कर सकेगी, उसमें गैसेस डिफ्यूज़ कर सकेगी। नंबर 3 डियर स्टूडेंट्स, इट वार्म्स द एयर। ये एयर को वार्म भी करती है, वार्म्स द एयर, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अगर बाहर का जो टेम्परेचर कम हो तो ये उसको वार्म भी करती है, क्योंकि यहाँ पर दिस रीजन इज़ रिच इन ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स होने की वजह से यहाँ पर जो हीट है वो ज़्यादा होती है। तो जैसे यहाँ से गुजरती है एयर नाक में से, नेज़ल कैविटी में से, तो उसको जो है वो वार्म कर दिया जाता है। क्लियर? सो अब डियर स्टूडेंट्स, जो नेज़ल कैविटी है ये सिंगल नहीं है, आपने देखा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे 2 नेज़ल कैविटीज़ हैं। ठीक है, द लेफ्ट वन एंड द राइट वन। तो और इसके पीछे भी अल्लाह ताला ने एक मकसद रखा। आप अगर सोचें, अकल वालों के लिए निशानी है। अगर जैसे नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, तो अगर ये सिंगल कैविटी होती तो एक ही कैविटी ब्लॉक होगी तो फिर तो हमें सांस लेने में बड़ा मुश्किल हो जाता। तो अल्लाह ताला ने इस कैविटी को डिवाइड किया विद द हेल्प ऑफ नेज़ल सेप्टम। यहाँ पर ये दरमियान में क्या मौजूद है? नेज़ल सेप्टम। तो नेज़ल सेप्टम क्या करता है? नेज़ल कैविटी को 2 जो है वो कैविटीज़ में डिवाइड कर देता है, राइट एंड द लेफ्ट। क्लियर? सो इफ वी लुक द नोज, ये सामने से इसका व्यू दिखा रहा हूं आपको नोज का, तो यहां पर ये क्या मौजूद है? दिस इज द नेज़ल सेप्टम। क्लियर? सो नेज़ल सेप्टम, दिस इज द नेज़ल सेप्टम। नाम ही रखा गया, सेप्टम डिवाइड कर देगा। सो दिस इज द This one is the right nasal cavity, and this one is the left nasal cavity. तो एक तो फायदा ये हो गया। ठीक है, तो ये नोज को यहां से बिल्कुल सामने से ऐसे दिखाया गया। ठीक है, ये सामने वाला इसका व्यू है। दूसरी चीज ये स्टूडेंट्स यहां पर जो कि समझने वाली है, बहुत अहम चीज है, दैट इज कि जो नेज़ल कैविटी है यहाँ पर अल्लाह ताला ने 3 बोन्स जो हैं यहाँ से यहाँ पर बनाई, जो कि नेज़ल वॉल, यानी यहाँ से वो बनना शुरू होती हैं, ये वॉल्स। ठीक है, यहाँ से निकलती हैं, 1 2 and 3। क्लियर? तो जिसकी वजह से इन 3 जो ये नेज़ल बोन्स हैं इनको हम कहते हैं कॉन्का, दे आर कॉल्ड एज कॉन्का। तो दिस इज सुपीरियर कॉन्का, दिस वन इज द मिडल कॉन्का। अब डियर स्टूडेंट्स एक चीज क्लैरिफाई रखिएगा, सेकेंड ईयर में भी आप पढ़ेंगे डिटेल के साथ, लेकिन यहां पर एक चीज समझ लीजिए, ये दोनों बोन्स यानी कि ये 2 कॉन्का जो हैं, दे आर द पार्ट ऑफ एथमॉइड बोन। ये एथमॉइड बोन का ही हिस्सा है। ठीक है, जबकि जो इंफीरियर कॉन्का है, इंफीरियर कॉन्का, ये सेपरेट बोन है, दिस इज अ सेपरेट बोन। क्लियर? तो इन बोन्स की वजह से देखिए यहाँ पे 3 रास्ते बन चुके हैं। सो एयर अब आई तो उसको मजीद डिवाइड कर दिया गया, कुछ ऊपर वाले कॉन्का पैसेज वे से जा रही है, कुछ मिडल वाले से, कुछ इंफीरियर वाले से। ठीक है, तो दोनों नेज़ल कैविटीज़ में ये 3 रास्ते बने हुए हैं। तो इनकी वॉल से ये कॉन्का यानी 3 हड्डियाँ निकलती हैं, 3 बोन्स निकलती हैं, ये मीडियली और जैसे नीचे की तरफ इंफीरियरली ये डाउनवर्ड होती हैं, और ये
मज़ीद रिफाइन करती हैं, मज़ीद हेल्प करती हैं एयर की इसमें से पार्टिकल्स को स्वैप करने के लिए, ट्रैप करने के लिए और रेस्पिरेशन को मज़ीद एफिशिएंट बनाने के लिए। क्लियर? तो जो यहाँ पर जो म्यूकस एपिथेलियम है, ये जिससे हर तरह के ऑलमोस्ट जैसे वायरस, बैक्टीरिया, इस तरह के बहुत सारी चीज़ों को ट्रैप कर लेती हैं। ठीक है? तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अब पीछे की तरफ जाएंगे तो एक ओपनिंग ये होगी लेफ्ट साइड पे और एक ओपनिंग होगी ये लेफ्ट और एक राइट साइड पर। क्लियर? तो इंटरनल नॉस्ट्रल्स में यानी जो पीछे थ्रोट में जाकर खुलेंगी तो दो ओपनिंग्स हैं। ये कंसेप्ट ज़रा दोबारा से सुन लें। नोज जो है, नेजल कैविटी, यहाँ पर 3 हड्डियाँ होने की वजह से 3 वो पाथवे बन गए, 3 वो एयर पैसेजेस बन गए, 3 इसमें 3 इसमें, लेकिन ये वॉल्स के साथ हैं। ठीक है? ये कैविटी के अंदर ही रहेंगे। पीछे से इंटरनल नॉस्ट्रल जो है तो वहाँ पर तो सिंपल एक ही ओपनिंग है, दिस वन है सिंगल ओपनिंग। क्लियर? सो दिस इज अ सिंगल ओपनिंग। सो एक ओपनिंग लेफ्ट राइट साइड पर और एक ओपनिंग लेफ्ट साइड पे। ये पीछे की तरफ खोलेंगे किसमें? थ्रोट के अंदर। सो द इंटरनल नॉस्ट्रल्स दे ओपन इनटू द फेरेंक्स, ये जिसको हमने कहा था थ्रोट। क्लियर? सो दैट इज द थ्रोट। ये गला जो हमें मस्कुलर ट्यूब है, यहाँ पर पहुँच गया। सो दिस इज द फेरेंक्स, यहाँ पर पहुँच गए। अब फेरेंक्स जो है इसके यहाँ पर देखेंगे, ये फेरेंक्स, ये सारी ये ट्यूब, मस्कुलर ट्यूब, इसके फ्लोर के ऊपर, एट द फ्लोर ऑफ दिस फेरेंक्स देयर इज अ ओपनिंग, दिस इज स्मॉल ओपनिंग व्हिच इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस, इसे कहते हैं ग्लॉटिस। और यहाँ पर भी देखेंगे इसकी बिल्कुल पीछे वाले साइड पर क्या मौजूद है? द फूड पाइप व्हिच इज कॉल्ड एज एसोफेगस, ये खुराक की नाली, चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था। ठीक है? तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो हमारी हवा की नाली है, यानी कि जो हमारा ट्रेकिया है, दैट इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द एसोफेगस, एसोफेगस के आगे पड़ा है। ये वाला हमारा सामने वाला हिस्सा कौन सा है? वेंट्रल। पीछे वाला हिस्सा कौन सा है? डॉर्सल। तो ये दोनों ट्यूब्स ये इस तरह से मौजूद हैं। यहाँ से तो मैंने साइड व्यू दिखाया आपको, तो ये 2 ट्यूब्स हैं। ठीक है? सो सामने वाली कौन सी है? ये हमारी रेस्पिरेटरी ट्यूब है, ट्रैकिया, और उसके पीछे ये ब्लू वाली ये हमारा फूड पाइप। तो ये इस तरह से पड़े हुए हैं लाइक दिस। तो पीछे फूड पाइप है, तो इसके आगे पड़ी हुई है हमारी हवा की नाली, मतलब कि इट इज लाइंग वेंट्रल टू द एसोफेगस। ये वर्डिंग मौजूद है बुक के अंदर, ये इसको समझाने के लिए। क्लियर? अब इनके ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप मौजूद है। ठीक है? विच इज कॉल्ड एज एपीग्लोटिस। एपी मीन्स अबव, मतलब कि ये गार्ड किसको कर रहा है? ग्लोटिस को। इसी वजह से इसका नाम रखा गया एपीग्लोटिस। ठीक है? ये इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है पहले। ठीक है? इट इज़ मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। तो एक कॉन्सेप्ट था, आप लोगों ने पहले शायद पढ़ा था, मैंने वैसे चैप्टर नंबर 12 में इसको क्लेरिफाई करने की भी कोशिश की थी, मज़ीद दोबारा से बता देता हूँ। अगर ये कॉन्सेप्ट है कि ये बिल्कुल ऐसे नीचे आ जाता है और ये बिल्कुल ऐसे इसको ढक देता है ग्लोटिस को, हमारी हवा की नाली को, तो ये गलत है। ठीक है? ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं ठीक। ये तो सिर्फ टंग की मूवमेंट, जब टंग ऐसे पीछे को मूव करती है तो ये इसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल कर देती है। ये बिल्कुल नीचे मूव नहीं करता, बल्कि ये ऐसे मोर और लेस हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो हॉरिजॉन्टल होने से ये एटलीस्ट यहाँ पर आ गया, लेकिन खला तो बीच में फिर भी स्पेस बाकी है। तो एक तो ये फैक्टर, और दूसरा जब हम स्वैलो करते हैं तो लैरिंक्स ऊपर को मूव करता है, तो ये ग्लोटिस को थोड़ा और ऊपर ले जाएगा। तो ये जो सी ओपनिंग है मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होती। सो दैट इज द करेक्ट कॉन्सेप्ट। चैप्टर नंबर 12 में भी आपको समझाया था, उसमें दोबारा एक दफ़ा देख लीजिएगा स्वैलिंग वाले टॉपिक के अंदर। क्लियर? तो एक तो ग्लोटिस हॉरिजॉन्टल हुआ, दूसरा लैरिंक्स, लैरिंक्स जब ऊपर को मूव किया तो इसने ग्लोटिस को थोड़ा ऊपर कर दिया, तो ये हॉरिजॉन्टल हुआ है, ग्लोटिस थोड़ा सा ऊपर ऐसे आ गया। तो यहाँ पर अभी स्टिल थोड़ा सी स्पेस बाकी है, लेकिन इस पार्शली ओपन्ड जो स्पेस है यानी ग्लोटिस है, इसमें ना तो सॉलिड आमतौर पर एंटर हो सकता है हमारी खुराक की नाली में, ना हमारी हवा की नाली में यानी कि हमारे इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और ना ही लिक्विड आमतौर पर। क्लियर? सो दिस इज हाउ। अब उसके बाद इसकी फ्लोर के ऊपर ग्लोटिस के बाद नीचे क्या पड़ा है? कार्टिलेजिनस बॉक्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ ध्यान में रखिए, ये ग्लोटिस दिस इज ऑल्सो लाइन्ड बाय एपिथेलियम। ठीक है? ये भी एपिथेलियम से लाइन है, और इसकी एपिथेलियम एक्सटेंड होकर अंदर की तरफ कुछ रस्सियाँ सी बना देती है। ठीक है? अंदर कुछ इस तरह से कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स बना देती है। इनको कहते हैं द वोकल कॉर्ड्स, दे आर कॉल्ड एज। तो ये किसकी एक्सटेंशंस हैं? दे आर द एक्सटेंशंस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन और द एपिथेलियम ऑफ द ग्लोटिस, यहाँ से। सो दिस इज द वोकल
कॉर्ड। सो वोकल कॉर्ड, इसी की बदौलत हम बात कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो जब एयर यहाँ से टकरा कर गुजरती है इन वोकल कॉर्ड्स को, तो साउंड प्रोड्यूस होता है। फिर उस साउंड को हम प्रॉपर वर्ड्स में अटर करते हैं। किस तरह से? उस साउंड को विद द हेल्प ऑफ टीथ, विद द हेल्प ऑफ लिप्स, विद द हेल्प ऑफ टंग एंड विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट ऑफ द जॉज, हम इसको, उस साउंड को प्रॉपर वर्ड्स में अटर करते हैं। जैसे लेट्स सपोज आई हैव टू से, जैसे मुझे बोलना है ता, ता जो अरबिक जो ता होता है, तो ता बोलने के लिए माई टिप ऑफ द टंग शुड टच द बैक ऑफ माई इंसाइजर्स, ये पीछे वाली इंसाइजर्स को टच करेगी तो तब ये वर्ड प्रोनाउंस होगा। सो आइन गाइन ये हलक से निकलने वाले हैं यानी साउंड्स। सो दिस इज हाउ जो है वो स्पीच जो है वो हम प्रोड्यूस करते हैं। और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है जो किसी मखलूक को अल्लाह ताला ने नहीं दी। क्लियर? सो कुव्वत गोयाई ये हमें अल्लाह ताला ने प्रोवाइड की, हम अपनी एक्सप्रेशंस को बयान कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे जानवर भी तो आप बातें करते हैं, ठीक है, जानवर भी आपस में वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स उसको स्पीच नहीं कहा जाएगा। जैसे लाइक बफेलोस, काउज, ये भैंस है, वो भी एक दूसरे के साथ अब एक स्पेसिफिक साउंड से वो बातें करते हैं, ठीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स वो उनके अंदर इंसानों के अलावा बाकी जितने भी एनिमल्स हैं, इवन के द इंसेक्ट्स जो चींटियाँ, वो भी आपस में कम्युनिकेट करती हैं। वो हमें वो जो सी कम्युनिकेशन है वो स्पीच नहीं कहलाती। रीज़न, वो सिर्फ जो साउंड की इंटेंसिटी को, पिच को हाई या लो करके आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। वो वर्ड्स अटर नहीं करते, जैसे मैं अटर कर रहा हूँ, जैसे आप अटर करते हो, आप बोलते हो, ठीक है। सो ह्यूमंस हैव ओनली द एबिलिटी टू अटर दीज वर्ड्स। सो कुव्वत गोयाई से आपको याद है सूरह रहमान, ठीक है। सो अल्लामाहुल बयान, तो अल्लाह ताला ने इंसान को कुव्वत गोयाई दी है। सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेंस विच वी हैव गॉट, ठीक है। ये एक ऐसी ताकत है जो अल्लाह ताला ने हमें दी, जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ हर तरह की फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, समझा सकते हैं। इसी की बिहाफ के ऊपर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्लियर। अब इससे थोड़ा सा नीचे आते हैं, द लैरिंक्स या वॉइस बॉक्स इसको कहा गया, या फिर इसको एडम्स एप्पल भी कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। एडम्स एप्पल ये मेल्स के अंदर थोड़ा प्रोमिनेंट होता है, यहाँ पर ऐसे ट्रायंगुलर सा होता है, लाइक दिस, आप देख सकते हैं, आप फील कर सकते हैं। मेल्स में थोड़ा सा प्रोमिनेंट होता है, इसको एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा इससे नीचे आती है, सो देयर स्टार्ट्स अप ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड ट्रेकिया। ट्रेकिया जिसको हम कहते हैं विंड पाइप, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विंड पाइप, हवा की नाली है ये हमारी। डियर स्टूडेंट्स, विंड पाइप इसकी याद रखिएगा कि इट इज अप्रॉक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है एक एडल्ट के अंदर, ठीक है, एडल्ट के अंदर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इस तरह से जो स्ट्रक्चर्स बने हुए, दीज आर सी शेप्ड कार्टिलेजेस, ये कार्टिलेजेस मौजूद हैं। और ये कौन सी कार्टिलेज है डियर स्टूडेंट्स? आप पढ़ के आ चुके हैं, दैट इज द हेयरलाइन कार्टिलेज, क्लियर। सो ये सी, इवन यू कैन फील ओवर देयर, यहाँ पर फील कर सकते हैं इसको थोड़ा सा। सो दिस इज द सी शेप्ड कार्टिलेजेस ट्रेकिया में मौजूद। ट्रेकिया जो है आगे चेस्ट कैविटी में एंटर होता है, और वहाँ पर लंग्स में जाने से पहले ये दो ब्रांचेस, दो स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड होगा, दे आर कॉल्ड एज ब्रोंकाई। सो लेफ्ट ब्रोंकस एंड द राइट ब्रोंकस। ब्रोंकाई और इनके अंदर भी देख सकते हैं स्टिल दो जो सी शेप कार्टिलेजेस हैं वो मौजूद हैं। फिर ये डिवाइड करते हैं ब्रोंकस, ये देखें राइट ब्रोंकस, ये डिवाइड किया, फिर इसे सब डिवाइड किया, और जैसे जैसे ये डिवीजन होती चली जा रही है, आप देखें यहाँ पर कि यहाँ से अब वो सी शेप कार्टिलेज खत्म होती जा रही है। सिंपल है, यहाँ पर वो प्लेट्स की शक्ल में कार्टिलेज रहेगी, यहाँ पर देखें। और उससे मज़ीद नीचे जाएंगे तो यहाँ पर वो कार्टिलेज भी नहीं है, एंड है, डेड है, क्लियर। सो यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर जब ब्रोंकाई डिवाइड एंड सब डिवाइड कर करके जब उनका डायमीटर रहे 1 मिलीमीटर और लेस, तो तब उस स्मॉलर डिवीजन को हम कहते हैं ब्रोंक्यूल, दैट इज टर्म्ड एज ब्रोंक्यूल। और ब्रोंक्यूल के अंदर डियर स्टूडेंट्स याद रखना है आपने बाद में, देयर इज नो कार्टिलेज एट ऑल, यहां पर कोई कार्टिलेज नहीं है। इन द ब्रोंक्यूल्स देयर इज नो कार्टिलेज, रादर यहां पर मौजूद हैं सर्कुलर स्मूथ
मसल्स। क्लियर? इनके अंदर मौजूद है स्मूथ सर्कुलर मसल्स, और फिर ये डिवाइड करेंगी इनटू अनदर डिवीजन विच इज कॉल्ड एज एल्वेओलर डक्ट। नाम से जाहिर है ऐसी नाली जिसके एंड पे क्या है, एल्वेओलाई। सो एल्वेओलर डक्ट, उसके एंड पे मौजूद एयर सैक। सो दिस इज अ एयर सैक, लार्ज एयर सैक, और इस एयर सैक के अंदर मौजूद हैं माइक्रोस्कोपिक बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज एल्वेओलाई, which is the structural and functional unit of our respiratory system. Clear? तो इस तरह से हम इसको लेकर आते हैं। Dear students, यहाँ पे याद रखिएगा, starting from this point, ये सारे जो हमारे रेस्पिरेटरी जो एपिथेलियम है, ये इट इज़ मोस्टली ciliated, ये ciliated है। यहाँ पर all the way there are present cilia, और इसका मकसद क्या है? सीलिया दे मूव इन जस्ट लाइक अ वाइपर, जैसे गाड़ी के वो वाइपर्स होते हैं, ठीक है, वो स्क्रीन को, विंड स्क्रीन को साफ करने के लिए। सो दे बीट लाइक इन दिस फैशन, इस तरह से ये वो बीट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर म्यूकस सेल्स भी मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में म्यूकस सेल्स भी मौजूद हैं। तो म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है, वो म्यूकस जो है वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है इन एल्वेओलाई के अंदर। अगर ये एल्वेओलाई में खुदा ना खासा चला गया तो इट विल कॉज द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। तो इससे बचने के लिए फिर अल्लाह ताला ने इन स्ट्रक्चर्स में ब्रोंकाई एंड ट्रेकिया, ये वो सिलिएटेड जो है कॉलमनर एपिथेलियम रखी, तो ये इसको ऐसे ऐसे मूव करती है। सो उससे क्या होता है, म्यूकस ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, अल्टीमेटली रीचिंग द ग्लॉटिस। यहाँ से फिर या तो हम उसको स्पिट आउट कर देते हैं, उस म्यूकस को थूक देते हैं, स्पिट आउट कर देते हैं, या फिर उसको स्वेलो कर लेते हैं, जैसे थ्रोट क्लियर लाइक दिस। सो जब थ्रोट क्लियर कर लेते हैं और वो फॉल कर चुका हमारे फूड पाइप के अंदर, यानी कि एसोफेगस के अंदर। तो ये सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम याद रखिएगा, इट इज़ प्रेजेंट इन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये बहुत अहम चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है हमारे लिए। और जो एल्वेओलाई हैं, इनके डिटेल स्ट्रक्चर की तरफ आप जब जाते हैं, सो हियर इज अ सिंगल alveolus. So it is richly supplied by the blood capillaries. जितनी इसकी ऊपर वाली सरफेस के ऊपर क्या मौजूद है, कैपिलरीज, और अंदर क्या है, स्पेस, अंदर जस्ट स्पेस है। एंड दिस इज एल्वेओलस, एक माइक्रोस्कोपिक जो है वो सैक, और दीज आर द कैपिलरीज। क्लियर? ये कैपिलरीज इसके ऊपर मौजूद है। यहां से डियर स्टूडेंट दो तरह की ब्लड वेसल्स जाएंगी, इनसे मिलकर ये एक इस तरह से एक लेके आ रही है, एक ब्लड वेसल ये, और एक ऊपर को जा रही है। इसके बारे में थोड़ा सा जरूर सुन लीजिए। सो ये जो ब्लड वेसल ऊपर को लेकर जा रही है, दिस इज बेसिकली द पल्मोनरी वेनियोल। ये वेनियोल है जो आगे चलकर क्या बनाएगी, वेन, पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन्स के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो नीचे की तरफ ब्लड लेके आ रही है, दिस ब्रांच इज द पल्मोनरी आर्टेरियोल। तो उसमें कंफ्यूज तो नहीं हुए ना, आपको ये टर्म पता है। चैप्टर नंबर 14 में इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। सो हमारे जो ब्लड वेसल्स उनकी डिवीजन इस तरह होती है। आर्टरी जब डिवाइड करती है तो उससे बनती है आर्टेरियोल, आर्टेरियोल सब डिवाइड करेगी तो उससे बनेगी कैपिलरी, कैपिलरीज दे रीजॉइन टू फॉर्म वेनियोल्स, वेनियोल्स दे रीजॉइन टू फॉर्म वेन्स। क्लियर? तो यहाँ पर ये वेनियोल है, वेनियोल से आगे पल्मोनरी वेन बनेगी, और ये हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर तो आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे लंग्स एंड द मैकेनिक्स ऑफ ब्रीथिंग। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।